Namaskar. This is Priyadarshan and you are welcome in the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. So dear children, we are going to read today a very fascinating poem, and the name of the poem is The Tale of a Melon City. It has been taken from your book Snapshot of class 11th. The poet of this poem is Bikram Seth. So I think you all must be aware with the poet. He's a very famous poet, a great modern Indian English author, and he has written several books on a number of international awards, and his most famous novel is The Suitable Boy, for which he got a number of national and international awards for The Suitable Boy. He has also written a number of poems also. So we are going to read The Tale of a Melon City by Bikram Seth. The poem, in fact, is a satire on the modern functioning of the government. So, as you all know, there are three pillars of a government, or three organs, you can say. They are the legislature, judiciary, and executive. So this poem is a sarcasm on all these three pillars, and even the people, they are also not spared. So when we'll go through the poem, when we shall discuss it, then we'll come to know that how the poem deals beautifully with the people who make decisions, with the people who select their rulers. So all sort of things we shall face in this poem. So let us see, without wasting any time, the first stanza of this poem, The Tale of a Melon City. So जैसा कि प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि द टेल ऑफ ए मेलन सिटी यह एक व्यंग है आधुनिक सरकारी व्यवस्था पर। सरकारें जिस तरह से चुनी जाती है, जो लोग चलाते हैं, उस पर यह एक व्यंग है। तो जैसा आप सबको मालूम है कि तीन ऑर्गन्स होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के, जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो उस पर एक व्यंग है, और यहाँ तक कि कवि के प्रिज्म से जो आम लोग हैं वो भी नहीं अछूते हैं। As the introduction of this poem begins, it reads like this. The following poem is taken from mappings. So this is an extract, or you can say this has been taken from mappings. Mappings is a collection of poems by the poet Bikram Seth. It was published in 1981 and is included in the collected poems by Bikram Seth. तो मैपिंग एक काव्य संग्रह है कवि बिक्रम सेठ का, और यह कविता उसी काव्य संग्रह से उद्धरित है, उसी काव्य संग्रह से लिया गया है। द किंग इन दिस पोम इज जस्ट एंड प्लासिड। इस कविता में एक राजा है जो बिल्कुल ही न्यायप्रिय है, जस्ट है और प्लासिड है, बड़े ही शांत स्वभाव का भी है। डज ही कैरी हिज नोशन ऑफ जस्टिस अ बिट टू फार। शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि वह राजा जो इतना ही न्यायप्रिय है तो इस धारणा को बहुत दूर तक खींचता है। इन फैक्ट हियर वील फाइंड इन दिस फ्रेज जस्ट एंड प्लासिड दैट हाउ ब्यूटिफुली द पोएट हैज in fact narrated, or the poet has in fact the way he has used sarcasm, जिस तरह से कवि ने सरकाज़म का प्रयोग किया है। ऑन द नेचर ऑफ द किंग इज जस्ट एंड प्लासिड। तो इस फ्रेज में भी आपको व्यंग मिलेगा कविता पाठ के दौरान। तो लेट अस सी द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोम। इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग देयर वाज अ जस्ट एंड प्लासिड किंग। अब सी दिस टू लाइन्स ऑफ द पोम चिल्ड्रन। इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग। सो द सिटी अबाउट विच द पोएट इज इंट्रोड्यूसिंग यू, जिस शहर के बारे में, जिस नगर के बारे में कवि आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है, देयर वाज जस्ट एंड प्लासिड किंग, एक बहुत ही न्यायप्रिय और शांत स्वभाव का राजा था। The king proclaimed an ark should be constructed
that triumphally would spend the major thoroughfare to edify spectators there. जो वर्ड है spectators, जो दर्शक हैं, जो onlookers हैं. The king proclaimed an ark should be constructed. तो राजा ने ये घोषणा किया. The king declared that an ark should be made. आर्क एक गोलाकार आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर है. राजा चाहता है कि एक गोलाकार स्ट्रक्चर, एक गुंबदनुमा स्ट्रक्चर उसको बनाया जाए. That triumphally would spend the major thoroughfare to edify spectators there. और वह बनाया जाएगा thoroughfare के सामने, बिल्कुल सड़क के पास, ताकि जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो ऑनलुकर्स हैं, जो दर्शक हैं, उनको कुछ बातें कही जाए या उनको मोटिवेट किया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए. The workmen went and built the thing. राजा का आदेश था, भला इसकी अवहेलना कैसे होती. वर्कमैन गए, जो काम करने वाले, जो कामगार थे, वो गए और उन्होंने उस गोलाकार स्ट्रक्चर को, उस आर्क का निर्माण किया. They did so since he was the king. क्योंकि राजा का आदेश था तो उनको तो करना ही था, तो उन्होंने ऐसा किया. The king rode down the thoroughfare to edify spectators there. The king rode down the thoroughfare to edify the spectators there. राजा अपने घोड़े पर सवार होकर वह उसका निरीक्षण करने जाता है, उस स्ट्रक्चर का. जब वहाँ या उसका निरीक्षण करने वह जाता है. So in this part now, or in these few lines, what we have studied, इन कुछ पंक्तियों में हमने ये देखा कि राजा किसी नगर में एक राजा है. वह राजा बहुत ही न्यायोचित है और शांत स्वभाव का है, जस्ट एंड प्लासिड. वह एक हुक्म पास करता है, वह एक हुक्म देता है कि एक स्ट्रक्चर बनाया जाए, एक आर्क तैयार किया जाए जो बिल्कुल सड़क के पास हो, ताकि जो भी ऑनलुकर्स हैं, जो भी स्पेक्टेटर्स हैं, उनको कुछ बातें कही जाए या उनको प्रोत्साहित किया जाए. क्योंकि यह राजा का आदेश था, राजा का हुक्म था, इसकी अवहेलना कैसे होती. यथाशीघ्र कामगारों को बुलाया गया और उस आर्क का निर्माण किया गया. So this is what we find in this few lines, that some idea just came into the mind of the king. The king just passed an order, and he passed the order to get built one ark. All the people, they just blindly followed, because this was the order of the king, and the ark was constructed. So even not the proper time, attention, pondering, thinking, nothing was applied, just as the king said, and it was erected. So let us see the next part of the poem. Under the ark, he lost his crown. So as we read in the first part, that when the king went to inspect, that ark, जब वो अपने घोड़े पर सवार होकर उस आर्क की निरीक्षण करने के लिए जब राजा वहाँ जाता है, so under the ark he lost his crown. तो आर्क से, उस छज्जे से उसका क्राउन टकराता है, उसका मुकुट टकराता है, और वह मुकुट स्वाभाविक है, गिर जाता है. The ark was built too low. क्योंकि आर्क का जो निर्माण हुआ था, या आर्क निर्मित किया गया था, वह थोड़ा सा नीचे था, थोड़ा सा झुका हुआ था. उसकी हाइट उतनी अच्छी थी नहीं, और राजा का सर उससे टकराया, उसका क्राउन गिर गया. अफ्रॉन मतलब गुस्सा आ जाता है, उसकी भौं तन जाती है, राजा की भौं. appeared upon his placid face. So a frown appeared upon his placid face. अब यहाँ आयरनी भी है, आप देख सकते हैं, क्योंकि राजा जिसके बारे में कहा गया, जिसके बारे में यह कहा गया है, he was just and placid, very composed. placid का मतलब composed है, कि बिल्कुल ही शांत चित्त का व्यक्ति था, बहुत ही शांत स्वभाव का इंसान था. लेकिन शांत स्वभाव होने के बावजूद उसकी भौएं तन जाती है, वह नाराज हो जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है. A frown appeared upon his placid face. The king said, "This is a disgrace." राजा कहता है कि यह तो डिसग्रेस है, यह तो इंसल्ट है, यह तो अपमान है, यह तो अशुभ है, क्योंकि क्राउन गिर गया है, वह
आर्क क्राउन से टकराया और क्राउन गिर गया है, मुकुट गिर गया है। तो राजा का जब ताज ही गिर जाए तो राजा इसे अपमानित महसूस करता है, राजा इसे अशुभ का सूचक महसूस करता है। द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग्ड। और जिस तरह से उसने एक आदेश पारित किया कि आर्क बनवाए जाए, उसी स्टाइल में वह यह भी डिक्लेयर करता है कि जो भी बिल्डर्स थे सबको फांसी के फंदों पर लटका दिया जाएगा। द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग्ड। जो भी चीफ थे उनको फांसी दे दी जाएगी। द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग्ड, द रोप एंड गैलोज वर अरेंज्ड। और बहुत ही शीघ्र रस्सी, फंदा, सब चीज़ों की व्यवस्था कर ली गई। द चीफ ऑफ बिल्डर्स वर लेड आउट। उसको बुलाया गया, जो भी चीफ ऑफ बिल्डर्स थे, बनाने वालों में जो सबसे प्रमुख था, उसे बुलाया गया। ही पास द किंग, ही गेव अ शाउट। राजा के सामने से वो गुजरता है, सलाम करता है राजा को और जोर से बोलता है, ओ किंग, इट वॉज द वर्कमैन्स फॉल्ट। ओ सेड द किंग एंड कॉल्ड हॉल्ट। ओ किंग, इट वॉज द वर्कमैन्स फॉल्ट। और वह राजा के सामने बड़ी हिम्मत के साथ जो चीफ ऑफ द बिल्डर्स है वह बोलता है कि ओ किंग, दिस वॉज द फॉल्ट ऑफ द वर्कमैन। जो कामगार थे यह उनकी गलती है, मेरी गलती तो है नहीं महाराज, यह कामगारों की गलती है। तो राजा जब यह बात सुनता है तो वह कहता है, सबको रोकता है, कहता है कि ज़रूरत है थोड़ी सोच समझ से काम ली जाए, फांसी का जो यह प्रोसीडिंग्स है उसे तत्काल रोक दिया जाए। सो व्हाट वी फाइंड डियर चिल्ड्रन, हम इसमें प्यारे बच्चों क्या देखते हैं कि विदाउट एनी प्रॉपर डेलिब्रेशंस, विदाउट एनी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, यूजिंग इंटेलेक्ट और विजडम, बगैर सोच विचार के राजा उसके मन में जो भी आता है वह जस्ट आदेश पारित करता है। वह सिर्फ घोषणाएं करता है, आर्क बना दिए जाएं तो आर्क बना दिए गए। आर्क से क्राउन टकराया, क्राउन गिर गया, मुकुट गिर गया, तो बनाने जो इसके लिए जिम्मेवार है उसको फांसी दे दी जाए। तो इसी सिलसिले में जो चीफ ऑफ बिल्डर्स है उसे बुलाया जाता है, फांसी देने की पूरी तैयारी कर ली गई है। लेकिन वो चीफ ऑफ बिल्डर्स वह घोषणा करता है राजा के सामने, वह जोर से बोलता है कि मैं नहीं, इसके लिए तो जो कामगार थे वो जिम्मेवार थे। एंड दिस इज हाउ द ब्लेम कीप्स ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। इस तरह से यह जो ब्लेम गेम है शुरू होता है, एक दूसरे को कहता है, दूसरा तीसरे को कहता है, एंड दिस इज हाउ द पोम एडवांसेस। और इस तरह से यह कविता आगे बढ़ती है। लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट। To the proceedings being just and placid now, he said, I must have all the workmen hanged instead. अब राजा चूंकि जो चीफ ऑफ बिल्डर्स था उसने कहा कि महाराज मैं तो दोषी नहीं, दोषी तो जो कामगार थे, ये उनकी गलती है। तो राजा बहुत ही गंभीरता से विचार करता है और कहता है कि आई मस्ट हैव ऑल द वर्कमैन हैंग्ड इंस्टेड। ये जितने भी कामगार थे सबको फांसी दे दी जाए। द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज्ड एंड सेड। और जो काम करने वाले मजदूर थे, जो कामगार थे, वो बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने कहा, ओ किंग, यू डू नॉट रियलाइज, हे राजन, आप यह महसूस नहीं करते, यह कामगार के शब्द हैं जो काम करने वाले थे, कि ओ किंग, हे राजन, यू डोंट रियलाइज, आपको इस बात का एहसास नहीं, द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज। तो जो कामगार थे, क्योंकि उनको अपनी जान बचानी थी, तो वो कहते हैं कि हे राजन, कम से कम इतना तो समझें कि जिन ईंटों का प्रयोग किया गया था आर्क बनाने में, इनफैक्ट उन ईंटों की साइज ही छोटी थी, उसके आकार ही कम थे, और इसलिए आर्क छोटा हुआ, आपका मुकुट टकराया और वो नीचे गिर गया। So, king, you don't realize the bricks were made of the wrong size. Summon the masons. Immediately, the king ordered, summon the masons. Masons जो मिस्त्री है, जो ईंट वगैरह बनाने का काम करते हैं। The king ordered, summon the masons, said the king. Masons को बुला लो।
उस मिस्त्री सबको बुला लो। द मैसन्स स्टूड देयर क्विवरिंग। क्विवरिंग का मतलब कांपना होता है। लेट अस सी दिस वर्ड। Quivering is like shaking. You can say another word, scared. Feared. Threatened. These all are the synonyms of the word quivering, कांपना, डरना, भयभीत होना, घबरा जाना. So, summon the masons, said the king. राजा ने कहा कि उन मिस्त्रियों को बुला लिया जाए. The masons stood there quivering. वो सारे राजमिस्त्री कांपते हुए बेचारे खड़े हो गए. It was the architect, they said. और कहा, महाराज इसमें मेरा क्या दोष है, यह तो वास्तुकार का दोष है, ये सारा तमाशा वास्तुकार का किया हुआ है. It was the architect, they said. The architect was summoned. नहीं तो उन मैसन्स ने बोले, जो मिस्त्री थे जिन्होंने ईंटों का निर्माण किया था, ईंट बनाए थे, उन्होंने कहा कि महाराज इसमें तो मेरा कोई दोष नहीं, आर्किटेक्ट का दोष है. आर्किटेक्ट जो जिसे आप वास्तुकार कहते हैं. Those who create or make the design of a building, जो बिल्डिंग के डिज़ाइन वगैरह तैयार करते हैं, वो आर्किटेक्ट कहलाते हैं. So, dear children, what we find, let us see from the beginning. If you at first the king orders that an ark should be constructed, एक आर्क का निर्माण हो जाना चाहिए. एक आर्क का निर्माण हो जाना चाहिए. जब आर्क बनाए जाते हैं तो once, because the king had to inspect the construction of the ark, so he went there to inspect it. In fact, his crown, it touched the ark and the crown fell down. उनका मुकुट नीचे गिर जाता है. It angered the king, and thereafter the person whom he think is responsible, so he summons that person. उस व्यक्ति को कहा जाता है कि उसको फांसी दे दी जाएगी. जब उसे बुलाया जाता है तो वह अपने दूसरे के ऊपर ब्लेम करता है. वह कहता है कि इट्स नॉट माई फॉल्ट, दिस इज द फॉल्ट ऑफ द मैसन्स. यह उन मैसन्स के फॉल्ट है जिन्होंने ईंटों का निर्माण किया है. Thereafter, the king decides to hang all those masons. They were called, they were summoned. In fact, all the masons, they were quivering. वो सब के सब डर के मारे कांप रहे थे. और वो कहते हैं कि this is not my fault, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं. In fact, the architect is responsible. So the king summons the architect. And what happens thereafter, we shall find here. So, well, architect, said his majesty, I do ordain that you shall be. अब इस वर्ड को देखें, ordain. Ordain. It's also order. आदेश देना. So, well, architect, said his majesty. महाराज ने कहा, ठीक है आर्किटेक्ट, I do ordain that you shall be hanged. यह मेरा हुक्म है कि तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, तुम्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा. ओ किंग, यू हैव फॉरगॉटन वन स्मॉल थिंग. तो वो जो आर्किटेक्ट, वो भी बहुत ही होशियार है, चालाक है. वो कहता है, याद दिलाता है कि यह ओ किंग, यू हैव फॉरगॉटन वन स्मॉल थिंग. हे राजन, आप एक छोटी सी भूल कर रहे हैं. यू मेड सर्टेन अमेंडमेंट्स to the plans when I showed them to you. आपने उस प्लान्स में सुधार किए थे जब मैंने आपको वह प्लान शुरू में ही आपको दिखाया था. जब आग का निर्माण करने की बात चल रही थी तो मैंने उसकी सारी प्लानिंग आपको दिखाया था और आपने उसमें सुधार करने को बोला. द किंग हर्ड दिस. राजा जब यह सुनता है बहुत ही घबरा जाता है. द किंग सॉ रेड. राजा चौंक उठता है. इनफैक्ट he nearly lost his head.
मानो ऐसा कि राजा की गर्दन फंसी, राजा का गर्दन गया। बट बीइंग अ जस्ट एंड प्लासिड किंग, चूंकि राजा बिल्कुल न्यायप्रिय था और बिल्कुल ही शांत स्वभाव का था, ही सेड दिस इज अ ट्रिकी थिंग। वह कहता है कि मसला बड़ा पेचीदा हो गया है। राजा यह बोलता है। So here, children, what we find from top to bottom that no one person shifts the blame on the other person. एक व्यक्ति जब उसका नाम आता है तो वह आरोप दूसरे के सर मढ़ता है, वह दूसरा तीसरे के सर मढ़ता है, तीसरा चौथे के सर मढ़ता है, और आखिरकार किसका गर्दन फंसता है तो वह राजा का गर्दन फंसता है। राजा घबरा सा उठता है और कहता है कि मामला बहुत पेचीदा है, थोड़ी गंभीरता से इसे ली जाए। So ultimately the king becomes responsible, the king becomes the victim, and he is facing the death sentence, and therefore he buys time, he takes time and says the matter is quite serious. Let us deal it seriously. So I need some counsel. यह राजा बोलता है कि हमें कुछ मशवरे की ज़रूरत है, कुछ सलाह चाहिए। Bring to me the wisest man in this country. तो इस देश के जो सबसे कुशल, बुद्धिमान, होशियार लोग हैं उनको बुलाया जाए। यह राजा का अगला आदेश है। The wisest man was found and brought. जो सबसे तीक्ष्ण बुद्धि का व्यक्ति था पूरे राज्य में, जो सबसे प्रवीण था, उसे बुलाया जाता है। The wisest man was found and brought. खोजा गया पहले, फिर बुलाया जाता है। Nay, carried to the royal court. Nay, carried to the royal court. उस राजशाही दरबार में उसे लाया जाता है, उठा कर लाया जाता है। He could not walk and could not see. वह बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धि तो बहुत अधिक थी, लेकिन नहीं तो चल सकता था और नहीं तो देख सकता था, लेकिन था बुद्धिमान। So old and therefore wise, क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, वह एक उम्र दराज इंसान था, इसलिए राजा सोचा कि जरूर ही बहुत बुद्धिमान होगा। But in a quavering voice he said, लेकिन क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, वह तो न तो चल सकता था नहीं तो देख सकता था, तो वो हिलते डुलती आवाज़ में, कपती हुई आवाज़ में वह कहता है, The culprit must be punished. जो भी दोषी है उसे अवश्य ही दंडित किया जाए। Truly, the ark it was that banged the crown off, and it must be hanged. The ark it was, वह बुद्धिमान व्यक्ति कहता है कि the ark it was that banged the crown off, जो गिरा दिया। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने सलाह ये दिया कि चूंकि जिम्मेवार कौन है, तो जिम्मेवार वह आर्क है, वह गोलाकार, वह आर्क है जिम्मेवार इन तमाम चीज़ों के लिए, तो क्यों नहीं आर्क को ही फांसी पर लटका दिया जाए। सो दिस वाज द सजेशन ऑफ द वाइजेस्ट मैन ऑफ द किंग on which that particular king was ruling. So children, you can see it. There is humor also. There is element of humor in this poem also. It appears to be humorous. यह हास्यात्मक तो दिखता है, हास्यात्मक तो लगता है, लेकिन है नहीं। There is satire also in the poem. So it's very good reading. And from the beginning what we find, I am repeating this, that the blame keeps on shifting from one person to another person. Ultimately, it came to the king. When the king was made responsible, as the architect said, that it is you who amended the planning, and therefore, the ark was low, and it crashed with your crown, and the crown fell down. So thereafter, the king orders for the wisest person in the country. The wise man was brought. The wise man was almost blind, you can say. He was not able to see anything. He was not able to walk also. न तो वो चल सकता था, न तो वो देख सकता था. But he was the wisest man because of his age. लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से वह सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, और वह जो मशवरा करता है, वह जो सलाह देता है, वह अपने हिसाब से सोचता है, और वह कहता है कि आर्क इज इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल, आर्क ही जिम्मेवार है, और क्यों न उस आर्क को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। Let us see the next part of the poem.
So to the scaffold, the ark was led. आर्क को संभाल कर स्कैफोल्ड तक जो बनाया गया था, जिस जगह पर उसको फांसी दी जाती, लाया गया. When suddenly a counselor said, तो जब ही उस आर्क को लाया जाता है, स्कैफोल्ड इनफैक्ट एक वुडन स्ट्रक्चर होता है, लकड़ी का बना होता है. और पुराने ज़माने में राजे महाराजे लोग पब्लिकली जब लोगों को फांसी देते थे तो उसी तरह के लकड़ी के बने हुए, मतलब लकड़ी का बना हुआ होता था वो, और वो पब्लिकली उसको फांसी दिया जाता था. तो स्कैफोल्ड लकड़ी का बना हुआ फांसी देने की जगह है. तो उस आर्क को वहाँ तक लाया जाता है. When suddenly a counselor said, अचानक एक मंत्री उठता है और वह कहता है, How can we hang so shamefully? इतनी शर्मनाक फांसी हम कैसे दे सकते हैं? What touched your head? जो चीज़ आपके सर को छुआ है, जो चीज़ आपके सर को टच किया है, छुआ है, योर मेजेस्टी. तो काउंसलर का मतलब यह है कि वह चीज़ जो आपके सर को, आपके मुकुट को टच किया है, वह तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ होगी, तो भला उसको कैसे फांसी दिया जाए. ट्रू, म्यूज द किंग. राजा राजी होता है इससे. वह कहता है, बिल्कुल सच कह रहे हो. बाय नाउ द क्राउड रेस्टलेस was muttering aloud. Muttering is, making noise, shorgul. So this took a very long time. Though the king was just and placid, but still the king couldn't find a person to whom he would hang. So the king perceived their mood and trembled and said to all who were assembled. जब राजा पब्लिक में उत्तेजना आ गई थी, पब्लिक उत्तेजित हो गया था, वो रेस्टलेस था, अशांत था. राजा पब्लिक की अशांति को भांप सा गया, वह समझ गया पब्लिक का मूड क्या है. द किंग परसिव्ड देयर मूड एंड ट्रेम्बल्ड, और घबरा भी गया. एंड सेड टू ऑल हु वर असेंबल्ड, और सबको कहा, जो भी लोग वहाँ एकत्रित थे, लेट अस पोस्टपोन कंसिडरेशन ऑफ फाइनर पॉइंट्स लाइक गिल्ट द नेशन. अब इस विवाद को यहीं ख़त्म किया जाए और जो भी हैं उसको फांसी के फंदे पर इस दोष के लिए लटका दिया जाए. So this is how the poem advances, that one person blames other, ultimately it comes closer to the king, and when the matter comes close to the king, his own neck, then the wisest person was called. The wisest person says the ark is responsible, and thereafter one counselor, he stands and he opposes this idea. The king agrees, and he has something else in his mind. But by that time, the public becomes restless. इस घटना के होते आते आते लोगों में अशांति फैल जाती है, लोग अशांत हो जाते हैं, लोग शोर शराबा करने लगते हैं. So a kind of restlessness comes into the people. It shakes the king becomes scared, and he is in great hurry. So children, we have read up to this. We shall complete this poem in the next class. Till then, goodbye, namaskar.